Good morning, students. Today I am going to continue your chapter Discovering Tut. The saga continues. This is my fourth video and I am going to start again page number 25, last paragraph. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. The new pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna. He further shocked the country by the attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. Wacky means amusing in a slight odd way. What happened here? Tut's father or a grandfather, Amenhotep III, was a powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. यहाँ पे Amenhotep III जो है उन्होंने 40 साल तक रूल किया और उनके जो सन थे वो उन्होंने उनकी जो किंगडम थी उसे फॉलो किया, उसे रूल करना, एंड वो उनका स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था. उन्होंने क्या प्रमोट किया? एथेन द सन डिस्क को वर्शिप करना, सन गॉड को. ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनहातेन, मीनिंग द सर्वेंट ऑफ एथेंस. ही ऑल्सो शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द थीबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेहातेन कॉल्ड अमरना. अब क्या हुआ? यहाँ पे जो रिसर्च कर रहे थे इस डिस्कवरिंग टट के समय, तो उन्होंने वहाँ पर जो चिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे, डायरेक्टर्स थे उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये सब जब देखा तब उनको लगा कि शायद ये बहुत टफेस्ट पीरियड रहा होगा, बैड पीरियड रहा होगा इस एम्पायर फैमिली के लिए. एंड वो कैसे एंड हुआ होगा? Empire as a family who ruled for centuries came to an end and Akhenaten moved it an odd डायरेक्शन. उन्होंने क्या करा? उसे और डायरेक्शन में मूव किया. सही तरीके से नहीं, बहुत अलग ही, बिल्कुल डिफरेंट वे में उन्होंने वो रूलिंग अपनी ले गए थे. आफ्टर अखेनातेन्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 26. आफ्टर अखेनातेन्स डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Samenkhkare appeared brightly and excited with hardly a trace, and then a very young Tutankhaten took the throne. The king Tut, as he is widely known today. The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image as Amun, and oversaw a restoration of the old ways. He resigned for about 9 years and then died unexpectedly. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one of the mummy among many in Egypt. How many, no one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in the late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase, scanning the mummies with the portable CT machines donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer, King Tut, is one of the first mummies to be scanned, in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. Now what happened? And another mysterious ruler, एक और रूलर आया, शासक आया, जिनका नाम था समेनखाखेर, सक्सीडेड हिम एंड डाइड सून. उन्होंने अमेनहातेन को नेक्स्ट, उनके बाद उन्होंने उसको उस थ्रोन पे बैठे, कुछ सालों तक उन्होंने रूल किया और वो जल्दी मर गया. नेक्स्ट कौन आया? तुतनखामुन, जिन्हें हम आज जानते हैं, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इनका नाम है टट. उन्होंने राज सिंहासन गद्दी ले ली और उन्होंने रूल करा. उन्होंने 9 साल तक वहाँ पर शासन किया. ही वर्शिप्ड गॉड एम्यून इन द ओल्ड वे, जैसे पहले के लोग वर्शिप करते थे
पूर्वज जैसे वर्शिप करते थे और आमुन गॉड को, वैसे ही उन्होंने वर्शिप करना स्टार्ट किया। वापस वही कल्चर उन्होंने अपना लिया। पहले एक जो शासक था उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सन डिस्क यानी आतिन को वर्शिप करना स्टार्ट किया था और सब कुछ चेंज कर दिया था। बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था उस समय, शायद हॉरिफिक कंडीशंस थी उस समय उस एम्पायर की। मगर ये यहाँ पर जब किंग टट ने, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने जब रूल किया 9 ईयर्स तक, तो उन्होंने वर्शिप करना स्टार्ट किया वापस गॉड एमुन को, जैसे पहले करते थे। हाउएवर ही डाइड मिस्टीरियसली। अब उनकी मृत्यु जो है बिल्कुल रहस्यमय है, कोई नहीं जानता कि वो कैसे मरे हैं, क्या उनके मरने के पीछे क्या रीज़न था, या वो नेचुरल डेथ थी या कोई अटेम्प्ट था। Tut is one of the mummies in Egypt, whereas until now with the help of the Egypt Mummy Project, अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, उनके हेल्प से शायद कुछ पता चला है। 2003 में रिसर्च स्टार्ट हुआ था जब पता चला कि ऑलमोस्ट 600 ममीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड सो फार। अभी तक किसी को पता नहीं था कि कितनी ममीज मिल की गई है इन टोम्स में। उनकी रिसर्च पता चला कि 600 अप्रॉक्सीमेट अभी तक उन्हें रिसर्च में मालूम पड़ा है। अब have been recorded so far. King Tut's mummy was the first one to be scanned. अब इन सब में से भी 600 में से भी सबसे फर्स्ट स्कैनिंग प्रोसेस उस मम्मी का किसने अंडरवेंट किया, वो थे टट। उनका सबसे पहले स्कैन हुआ था, सिटी स्कैन, विद द मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी एंड साइमेंस। ये जो सिटी स्कैन मशीन थी ममीज़ के लिए, ये किसने डोनेट की थी, नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी एंड साइमेंस ने इस सिटी स्कैन फेस को, स्कैनिंग मशीन को ममीज़ के लिए डोनेट की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, अ सिटी मशीन स्कैंड द ममी हेड टू टो। मतलब कैसे उन्होंने स्कैन किया, उन्होंने सिर से लेके पैर के अंगूठे तक उस सिटी स्कैन मशीन ने उस ममीज़ को स्कैन किया। किस किस डायमेंशन में उसको डिस्क्राइब किया इस पैराग्राफ में, 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस। इतने इमेजेस एक्सरेज के उसमें सिटी स्कैन में निकलते हैं। टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीलीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इनक्रिकेट स्ट्रक्चर्स। अब उनके हेड का स्कैन कैसे हुआ वो डिस्क्राइब किया। टेक्स एन एरायर डिटेल्स इन resulting images with Tut's entire body similarly recorded a team of specialties in radiology। इस टट की बॉडी को सिटी स्कैन करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस फील्ड में, उन लोगों ने उसको उसमें इन्वॉल्व हुए रिजल्ट देने के लिए। और कौन हुए, फॉरेंसिक्स हुए। एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ ग्लिटर्ड बुरेल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। अब यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी थे जो इस रिसर्च में शामिल थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे जो जान रहे थे कि क्या रीज़न है उनकी डेथ के पीछे, एनाटॉमी भी थे यहाँ पे, उन्होंने बिगेन किया है सीक्रेट्स जानने के लिए कि वो जो टट की जो मम्मी है, टट की मम्मी, उन्होंने कैसे उसको गॉडेसेस ऑफ ग्लिटर्ड बुरेल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इतने समय तक कैसे उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करके रखा, इस चीज़ के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर वो लोग कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स इस पैराग्राफ में हम देखेंगे। एरियल डिटेल मीन स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ टट्स हेड एज विजिबल विद द हेल्प ऑफ सिटी स्कैन। फॉरेंसिक, द एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम। एनाटॉमी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद अ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स और अदर लिविंग बींग्स। हमने ये भी समझा कि एनाटॉमी भी रिसर्च कर रहा था कैसे उस टट की मम्मी, उस मम्मी को, किंग टट की मम्मी को कैसे इतने दिन तक प्रोटेक्ट करके रखा गया, इतने सालों तक, कई सालों पहले की बात है ये, वो कैसे उन्हें इतने ग्लिटर्ड बुरेल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक कैसे प्रोटेक्ट करके उन लोगों ने रखा, इस पर भी वो रिसर्च कर रहे थे। बुरेल मीन्स बरिंग द डेड, श्राइन होली प्लेस, इस होली प्लेस में कैसे उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा, इस पैराग्राफ में हमने ये देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द राइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड, द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टोम इन हिज बॉक्स लाइक pallbearers. They climbed a ramp and a flight of stairs into the shrilling slant outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, printed for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of scan in a cooler fan.
curse of the pharaoh, joked a guard nervously. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data has been lost, the technician turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. अब इस पैराग्राफ में बताया गया कि कैसे सिटी स्कैन करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आई, कैसे उनको लगा कि वो जो रूमर्स थी उनके बारे में कि उनको अगर किसी ने छेड़ा तो वो बहुत कुछ कर्स, कुछ श्राप, अभिशाप दे देंगे, शायद इस कारण इतनी कुछ तकलीफ़ें आई, ऐसा उन लोगों को उस समय लगा। फिर वो वर्कआउट कर गया, कोई उनकी जो डाटा थी वो मिस नहीं हुई थी और वापस उन्होंने उस डाटा को रिकवर कर लिया था। और 3 घंटे के बाद उनको जहाँ से निकाला था उस कॉफिन में से, वहाँ जहाँ उन्होंने उनकी जो प्रेयर्स के साथ उनको जहाँ लिटाया वो था फ्यूनरी प्रीस्ट ने, वहाँ पर पीसफुली उन्हें वापस लिटा दिया गया। यहाँ पे भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। पैल बेरियर्स, अ पर्सन हु हेल्प्स टू एस्कॉर्ट अ कॉफिन एट अ फ्यूनरल, जो फ्यूनरल के टाइम पे उस कॉफिन को उठाते हैं उन्हें कहते हैं पाल बैरियर्स, हम कह सकते हैं। स्ट्रिलिंग्स, टू स्पिन और ट्विस्ट, स्पिलिंग बीन्स के बारे में सुना होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, अ लिफ्ट दैट यूजेस अ मशीन टू लिफ्ट और मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स विद अ प्रेशर। फर्स्ट इस पैराग्राफ हमने ये भी देखा कि तट की मम्मी को, किंग तट की मम्मी को उठाने के लिए कैसे उन्होंने वर्कआउट किया, कैसे उन्होंने लिफ्ट की सहायता से उसे क्लाइंब किया उस रैम्प पर, लिफ्ट्स ऑफ स्टैर्स पर, और ट्विस्ट करा सैंड्स में, बहुत सारी प्रोसेस से वो गुजरे जब जाके उनको सिटी स्कैन में डाला गया। कैसे एक बार और देख सकते हैं कैसे वो प्रयास किए गए। वर्कमैन क्लाइम्ड अप ऑन द रैम्प एंड द लिफ्ट ऑफ स्टैर्स टू कैरी द बॉडी फ्रॉम द टोम इनटू द स्पिनिंग सैंड आउटसाइड। बाहर बहुत आंधी तूफान चल रहे थे, उसमें एक बिलीव भी था कि उनको अगर छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ कर्स होगा, कुछ तबाही होगी। वैसे ही बाहर का क्लाइमेट भी ऐसे ही दिखा रहा था शायद कि बहुत हवा चल रही थी। फिर भी उन्होंने क्या किया, पैल बैरियर्स ने, दे रोज द बॉडी ऑन टू द हाइड्रोलिक लिफ्ट, उनके प्रयास से, उन पैल बैरियर्स के प्रयास से उनको उठाकर हाइड्रोलिक लिफ्ट में डाला गया। देन इनटू अ ट्रेलर वेयर द स्कैनर वॉज केप्ट, फिर उसके बाद एक ट्रेलर मशीन में डाला गया जहाँ पर स्कैनर रखा हुआ था। After 20 minutes, 2 men ran towards the office nearby to bring 2 fans. The scanner was not working as the sand has entered the cooler fan. वो स्कैनर वर्क नहीं करता ना, कर्स मिला है शायद, ऐसे लोगों को बिलीव था। तो वैसे ही शायद जब फेरोल से, जब तट के किंग तट को जब स्कैनर में डाला गया, वहाँ से उनके कॉफिन से उठाया गया और लिफ्ट से के माध्यम से स्कैनर के अंदर उनको पहुँचाया गया, तब वहाँ पर शायद उस हवा चलने के कारण उस कूलर फैन में सैंड चली गई थी तो वर्क नहीं कर रहे थे। वहाँ पे फिर लोग गए, उन्होंने 2 और फैन लेके आए। सबको बिलीव था कि ये कर्स है, कर्स ऑफ द फेरो, बिकॉज दे हैव रिमूव्ड हिज बॉडी, हम लोगों ने उसको रिमूव कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ है, शायद वो लोग ऐसा मान रहे थे। फिर फैन वर्कआउट करने लग गया, प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, फिनिश हो गया। जब डेटा चेक किया गया तो पता चला कि कोई भी लॉस नहीं हुआ है और बॉडी को वापस पैल बैरियर्स की हेल्प से जहाँ से उठाया था वहाँ पर पीसफुली रेस्ट पे रख दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आपको अभी तक के वीडियो में चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।